ایز آف بزنس ہے اس کے حوالے سے پوری کوشش ہو رہی ہے. متعلقہ جو وزیر ہیں ان کے جو عملہ ہے سیکرٹریز پوری کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے, اس میں انشاءاللہ اس کو ہم اچیو کریں گے ایز آف بزنس کو. لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا جو قدم اٹھایا گیا ہے کہ ہم نے ایک میٹنگ کی آج سے چند دن پہلے, اور ایز آف بزنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا, جس کے لیے وزارت داخلہ نے, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے, ان کے سیکرٹری آغا صاحب نے, اور فارن منسٹر صاحب نے, اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر ان کے سیکرٹری, فارن سیکرٹری ان کے عملے نے, اور اپنا کامرس منسٹر اور تمام متعلقہ جو کولیگز ہیں انہوں نے بہت مشاورت کے ساتھ ایک بہت شاندار فیصلہ ہوا ہے, جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں فرداً اور اجتماعاً. ایک ویزا رجیم میں ایک بڑی ایک بہت میجر ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں, اور آغاز کے طور پر جو ممالک پہلے جن سے ویزا فیس نہیں لی جاتی تھی, اب اس کی تعداد 126 ہو گئی ہے. یعنی 126 ممالک سے آنے والے جو وہاں سے پاکستان میں جو ٹورسٹ ہیں یا جو بزنس مین ہیں یا ٹریولرز ہیں, ان سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی. اس کے اوپر ہماری بڑی گفتگو ہوئی تھی, اس میں کچھ آمدن کا بھی ذکر ہوا, تو یہ بات طے ہوئی کہ پاکستان کی آمدن زیادہ ہوگی سرمایہ کاری سے یا چند $1 ملین ویزا کی فیس سے ہماری آمدن جو ہے اس سے کمپیئر کیا جائے گا. تو سب کا یونینمس ویو تھا کہ ہمیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے, سرمایہ لے کے آنا ہے, فارن انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. اس کے لیے ہمیں یہ ایز آف بزنس کے حوالے سے یہ کوانٹم جمپ ہمیں لینا چاہیے. کچھ 2-4 آوازیں تھیں کہ جو اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں $5-7 ملین ملتا ہے سال کا, وہ نہیں ملے گا. تو اگر $5-7 ملین اگر چلا جائے گا اور $50 ملین سے شروع کریں گے اور $700 ملین اگر آ جائے گا انشاءاللہ ان تمام اجتماعی ایفرٹ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا, اور آج کابینہ کے سامنے بھی یہ فیصلہ لایا جا رہا ہے, جو کہ آپ نے اس کی آج اس کو تجدید کرنی ہے, اس کی اپروول دینی ہے. اٹس آل اپ ٹو دا کیبنٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک بڑا فیصلہ ہے, اور آپ سب کو اس کے لیے میں تحسین پیش کروں گا کہ آپ اس ایک بڑے فیصلے کے حوالے سے پاکستان کی جو کوریڈورز ہیں ٹریولرز کے لیے, ٹورسٹ کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے, وہ کھول دیں گے. اور مجھے میرے ذاتی علم میں, آپ کے بھی ذاتی علم میں, خود مجھے آپ میں سے کئی آنریبل ممبرز نے شکایت کی کہ ویزے نہیں ملتے اور جناب ہم اپنا بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 24 گھنٹے میں ان کو ویزا ملے گا تھرو الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن فارم, وہ بھریں گے اور الیکٹرانکلی ویزا ان کو مل جائے گا. اور اسی طریقے سے ای گیٹس کا قیام وہ عمل میں لایا جا رہا ہے, اور یہ 9 ہوائی اڈوں سمیت گوادر پورٹ پہ اس کا اجرا کیا جائے گا انشاءاللہ. اور پہلے مرحلے میں کراچی, لاہور اور اسلام آباد کے جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پر ای گیٹس کا وہاں پر اس کا اجرا کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو ریلیجس ٹورزم ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا. اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجس ٹورزم کو اگر اس طریقے سے فروغ ملے گا یہ انسینٹیوز دینے کے حوالے سے, تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹریبیوشن ہوگی. وہ آپ دیکھیں گے کہ ریلیجس ٹورزم کو کس طریقے سے اس انسینٹیو سے فروغ ملے گا, اور پاکستان جو بہترین لوکیشنز ہیں ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے اور جنرلی شمالی علاقوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا ایک دروازہ کھلے گا, ایک کوریڈور اوپن ہوگا, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت بھی مستحکم ہوگی, اور انشاءاللہ جو زر مبادلہ کے جو ہمارے ذخائر ہیں انشاءاللہ ان میں بھی اضافہ ہوگا.
اللہ ताला के फजल करम से। तो मैं इस हवाले से मैं एक मरतबा फिर वज़ीर दाखिला, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर और साथ हमारे जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं प्राइवेटाइजेशन के, उन सबको दर्जा बदर्जा उनके सेक्रेटरीज़ को और उनके तमाम अपने पीएमओ के जो स्टाफ है उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस हवाले से मैं आप सबका इस हाल से ममनून हूँ कि आपने बड़ी तेज़ी के साथ इस मामले को आपने अचीव किया है। हालिया दिनों में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और केपी के इलाक़ों में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफ़ा हुआ और उसके नतीजे में हमारे जो अज़ीम जो सपूत हैं कौम के, पाकिस्तानी फ़ौज में, पुलिस में, सिविल आर्म फोर्सेस में उन्होंने जाम शहादत नोश किया है बड़ी तादाद में। अभी चंद दिन पहले 8 हमारे फ़ौज के जवान और अफसर शहीद हुए हैं, पुलिस के अफसर शहीद हुए हैं, पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि अगर आज पाकिस्तान में दोबारा एक इज्तिमाई काविशों के साथ ये जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है वो अपना बड़े बड़े यानी शदीद चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी IMF से हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, कितनी काविशों के बाद, कितनी मुश्किलात के बावजूद आप सब लोग उसके गवाह हैं। ख़ुद बजट सेशन के दौरान आपके ऊपर कितना प्रेशर था, मुझसे आप मशावरत करते थे कि वो गरीब आदमी के ऊपर हमें बोझ नहीं डालना। आज भी गरीब आदमी महंगाई से पिछले कई सालों से परेशान है। 50 लाख रुपए हमने अपने PSTP को कम करके 3 महीने के लिए 200 यूनिट्स के जो कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स 96% उनको हमने प्रोटेक्ट किया 3 महीनों के लिए, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, गरीब आदमी के ऊपर बेपनाह इस वक्त मुश्किलात का सामना है। IMF से हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है, उसके बाद अब उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर में जाना है, उसको उन्होंने अप्रूव करना है। हम दिन रात यहाँ पर बैठे हैं, मशावरत करते हैं, कल भी मशावरत कर रहे थे, परसों भी मशावरत कर रहे थे, ताकि हम इस मुल्क की जो किस्मत को बदलने के लिए जो हमने फ़ैसला किया है, जो हमने ज़िम्मेदारी उठाई है, सब मिलकर तमाम कोलिशन पार्टनर्स और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर इसमें अगर काविश करेंगे। बाकी तो अल्लाह के हाथ में है कामयाबी नाकामी, लेकिन कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमने इस रास्ते के ऊपर इस्तेकाम के साथ और यकसुई के साथ हम चलते रहे और मेहनत करते रहे, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये जो दहशतगर्दी का ये जो लहर है ये इंतहाई काबिल अफसोस है। इसमें कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है, उनके साथ हमारी पूरी इंटरेक्शन है, उनको हमने बरादराना तौर पर समझाया है, बताया है। पिछले दौर में ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ़ ले गए थे वहाँ पर, अभी भी उनसे राब्ते डायरेक्टली इनडायरेक्टली राब्ते हो रहे हैं। लेकिन ये किस तरह मुमकिन है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हों, उनके अपने भाइयों बहनों को हम यहाँ पर लाखों नहीं मिलियंस को हमने यहाँ पर मेहमान रखा 40 साल, और कभी ये गिला नहीं किया कि हमें हमारी जो इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमें अपने मामलात को ख़ुद संवारना है, सुधारना है। हम आपको बोझ समझते, कभी हमने ये कहा कि आप बोझ हैं, आप हमारे भाई हैं, आप रहें और अच्छे हालात होंगे, आप वापस जाएंगे और रूखी सूखी मिल के खाएँगे। लेकिन आज उसके नतीजे में हमें ये दिया जाए बदला कि यहाँ पर जो TTP है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए और अमन को गर्द कर दे और तजारत को तबाह करने पर तुल जाए, तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं, नाकाबिल बर्दाश्त है। इसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है अपने शहरियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, मगर हम चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से तय हो जाए, एक अमन से तय हो जाए और अमन से रहें। इस ख़त्े में अमन होगा तो तरक्की होगी, खुशहाली होगी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे बहादुर जवानों ने एक उनका जो खून का जो कतरा बहाया तारीख़ में हमेशा सुनहरे हरूफ से उनको याद रखा जाएगा और इसके लिए
पूरी तरह हम तैयार हैं हर तरह के जो हालात का मुकाबला करने के लिए। इसी तरीके से बदकिस्मती से जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सबको इल्म है कि पार्लियामेंट में उन्होंने हमला किया था, सबको इल्म है कि टेलीविज़न स्टेशन पर उन्होंने हमला किया था, सबको इल्म है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इर्द-गिर्द वही आके उनके जत्थे आ गए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की, तो पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के ख़िलाफ़, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जिस तरह उनको मतून किया जा रहा है, जिस तरह उनके नाम ले लेके ख़ुद सिपह सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा है जिसका हमें पूरी तरह एहसास करना होगा और किसी सूरत भी मादर वतन के ख़िलाफ़, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई हम इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को, पाकिस्तान की सरहदों को हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने, शहरियों ने, माँओं ने, बहनों ने अपने खून से उसकी आबियारी की, हिफाजत की है। और 76 साल में आप देखें, चाहे जंगें हों, चाहे दहशत गर्दी हो, चाहे सैलाब हो, चाहे तूफ़ान हो, ज़लज़ले हों, यही वो जवान हैं, यही वो लोग हैं, यही वो फोर्सेस हैं, यही वो पुलिस है, यही वो आर्मी है, यही वो एयर फोर्स है जिन्होंने अपने जान हथेली पर रख कर पाकिस्तान की हिफाजत की। तो मैं समझता हूँ कि आज ये लम्हा है कि जिसके ऊपर हमें एहसास करना होगा और शऊर जो है उसको उजागर करना होगा और पूरी यकजहती के साथ और यकसुई के साथ हमें इसके ख़िलाफ़ एक दीवार बनानी होगी और पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हम कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख़याल जारी था, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले मज़ालिम की मिसाल कहीं नहीं मिलती। मज़ीद कहा कि जर्मन वाक़या अफसोसनाक है और उन्होंने ये भी कहा कि शहीद होने वालों में फ़लस्तीन में ज़्यादा तादाद बच्चों की है। आपको बताएं कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराची ने जालसाजी में मुलव्विस गैंग को तारिक रोड से गिरफ्तार कर लिया गया।